Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the first video of collection of data, the very first lesson of statistics subject standard 11th Gujarat board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। Friends, in today's video we will study the history of statistics, how the word statistics came into existence, what was the journey of statistics, who is known as the father of statistics, what was the contribution of Indian statisticians in statistics. So all these interesting topics we are going to study today. So without wasting time, let's start. Friends, chapter number 1, collection of data. So the first point that we have to study here, that is origin and growth of statistics. यानी statistics का origin कहाँ से हुआ, उसका जन्म कहाँ से हुआ और उसकी growth कैसे हुई. So the first point, Indian contribution in the field of statistics has been quite significant from the time of Mauryan Empire 321 to 296 BC. यानी कि भारत का जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मौर्यन अम्पायर से चला आ रहा है, जो ईसा की 321 से 296 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है. द बुक इन अकबरी रिटन बाय अबू फजल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर 1596-1597 AD also mentions a highly developed statistical system for administrative and revenue services of the Mughal Empire. Friends, बादशाह अकबर के समय में अबू फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक ईनी अकबरी भी ये बताती है कि उस समय किस तरह आंकड़ा शास्त्र का यानी कि स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ था. उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और रेवेन्यू सर्विस सिस्टम में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ देखने को मिलता है. द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक which was used by Gottfried Eichenwall in 1749 for analysis of data about the state. यानी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के डेटा का एनालिसिस करने के लिए गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, स्टैटिस्टिक, और ये वर्ड जर्मन भाषा का शब्द है. स्टैटिस्टिक्स वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन Encyclopedia Britannica in 1797. The initial results on probability theory were found in 17th and 18th centuries by Laplace 1749 to 1827 and Gauss 1772 to 1855. Friends, you are familiar with the word probability, and probability theory you have studied in standard 10th. The same you have to study in standard 12th also. So such probability theory was presented by Laplace and Gauss in 17th and 18th century. The first statistical body, the Royal Statistical Society, was founded in 1834 in London. Friends, स्टैटिस्टिक्स के लिए पहली संस्था 1834 में लंदन में बनाई गई, जिसका नाम था द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी. The advanced field of statistics was developed in late 19th and early 20th century. Sir Francis Galton and Carl Pearson used mathematical statistics in science
इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स का जो एडवांस यूज़ है वो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। सर फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ साइंस, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिक्स के फील्ड में किया। कार्ल पियर्सन was the founder of mathematical statistics. He founded the Advanced Statistical Laboratory in England, and in 1911 the world's first University of Statistics department at University College London. Friends, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के फाउंडर कार्ल पियर्सन थे। उन्होंने एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी की शुरुआत इंग्लैंड में की थी और 1911 में पूरी दुनिया की स्टैटिस्टिक्स की पहली यूनिवर्सिटी उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में शुरू कराई थी। इन 1910 एंड 1920 गॉसेट एंड फिशर initiated to develop modern statistical science for the data having small samples, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे डेटा जिनके छोटे छोटे सैंपल्स होते थे, उन सैंपल्स का स्टडी वो मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस से गॉसेट और फिशर ने स्टार्ट किया 1910 और 1920 में। यानी अगर पूछा जाए कि मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस की शुरुआत किसने की, तो आपको याद रखना है गॉसेट एंड फिशर। फिशर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स टू अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स सच एज जेनेटिक्स, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, etc. So he is known as the father of statistics. फिशर ने स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया, जैसे कि जेनेटिक्स है, बायोमेट्री है, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सभी में उसने स्टैट को यूज़ करके दिखाया। इसीलिए फिशर को स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन यू हैव टू राइट फिशर, एंड इट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड व्हाई, who is known as the father of statistics, why, then you have to mention that Fisher is known as the father of statistics as he had used statistics in variety of fields like genetics, biometry, psychology, education and agriculture. So he is known as the father of statistics. During 1930, the refinement and expansion of earlier development was found in the collaborative work between E. Pearson and J. Neyman. Friends, 1930 में E. Pearson और J. Neyman ने मिलकर स्टैटिस्टिक्स का और ज़्यादा रिफाइनमेंट किया, उसका और ज़्यादा एक्सपेंशन किया, एंड एडवांस्ड मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स were developed day by day after that. E. Pearson और J. Neyman के एफर्ट्स के बाद ही दिन ब दिन स्टैटिस्टिक्स में और नई एडवांस मेथड्स आने लगी। फ्रेंड्स, इस पॉइंट से इंडिया का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI was founded by the well-known Indian statistician P.C. Mahalanobis in 1931 at Calcutta, which is known as Kolkata. फ्रेंड्स, भारत के फेमस आंकड़ा शास्त्री P.C. महालानोबिस ने 1931 में कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना की। P.C. Mahalanobis started the first postgraduate course in statistics at Calcutta University in 1931. इतना ही नहीं, P.C. महालानोबिस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1931 में स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी मास्टर डिग्री की शुरुआत की। द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स: स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा।
स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन करता है, उसका एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करता है। Nowadays, statistics is not only useful for quantitative data but also for the qualitative data. फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसे हम क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हो, जिसे हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे किसी की हाइट, वेट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई एट्सेट्रा। और कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, लाइक ऑनेस्टी ऑफ समवन, लॉयल्टी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फटीग, यानी किसी का गुस्सा, किसी की थकान, किसी की कमजोरी, किसी की ईमानदारी, ये सारे गुणात्मक वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। सो दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, but nowadays in statistics, quantitative as well as qualitative, both the variables can be studied. Industrial statistics and a branch of statistics, operation research, in short we write it OR, was used in military projects during the Second World War. Friends, OR यानी कि ऑपरेशन रिसर्च वो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स है, जो कि आंकड़ा शास्त्र की ही एक ब्रांच है, यानी स्टैटिस्टिक्स की ही एक ब्रांच है, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी यूज़ किया गया था। फॉर नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे इन 1953 एट द ISI कलकत्ता, PC Mahalanobis formulated the second 5-year plan with the help of OR techniques. For national planning and survey in 1953 at the ISI Calcutta, PC Mahalanobis formulated the second 5-year plan with the help of OR techniques. Friends, OR techniques का यूज़ करके 1953 में PC Mahalanobis ने नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे, जो कि ISI कलकत्ता में है, वहाँ सेकंड 5-year प्लान प्रस्तुत किया था। So friends, this was the journey of statistics and history of statistics. Now in the next video, we will proceed this chapter. Friends, I hope you all have understood all the topics that we have discussed today. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। Very soon we will meet and proceed this lesson. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.